डिफेंडिंग चैंपियंस गल्फ जायंट्स ने डीपी वर्ल्ड ILT20 का सबसे लोएस्ट टोटल डिफेंड करके दिखाया। आज बल्लेबाजी का न्योता इन्हें मिला था। ना जेमी स्मिथ चले, ना क्रिस लिन, ना कॉक्स, ना एरास्मस, लेकिन जेम्स विंस का पूरा साथ दूसरे छोर पर शिमरॉन हेटमायर ने निभाया। 126 तक ये पारी पहुंची और उसके बाद गेंदबाजों ने अपना काम पूरी तरीके से किया। एक ऑल राउंड बॉलिंग एफर्ट, चाहे ब्लेसिंग हो, एरास्मस हो, ओवरटन हो, जॉर्डन हो, जुबैर हो या अफजल, सबके खाते में विकेट्स गिरे और गल्फ जायंट्स ने डेविड वार्नर और दुबई कैपिटल्स को उन्हीं के घर में घुसकर उन्हें 19 रनों से मात दी है। हेलो एंड वेलकम, गुड इवनिंग फ्रॉम द दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। मेरा नाम है रिदमा पाठक और मेरे साथ जुड़ गए द हिटिंग मशीन ऑफ गल्फ जायंट्स, शिमरॉन हेटमायर, along with that we've got Nikhil Chopra as well as Vivek Razdan. Good evening, gentlemen. Good evening. Thank you. Well, it was an interesting partnership. It was a low total, but you guys managed to defend that. Was there a plan when you came in to defend it? I think it's just for the guys to just keep the balls on the stumps, to be fair. It wasn't the easiest wicket to get started on. It was just a little bit difficult and I think it just stopped just a little bit. So we just basically was trying to keep the ball on the stumps as much as possible. Right. Was it, was it sort of a two-pace wicket that you felt that it was stopping and then coming on to the bat? Because you are a valuable contribution of 34. At times, I think so, yes. I think more so with the spinners than the seamers, really. I think with just the seamers, it was probably just going up, like just bouncing us a little bit more. Like just bouncing and stopping just a little bit more. But with the spinners, it was kind of like holding just a little bit. How important was that partnership with the skipper, James Vince? Because that's the time when you were, 17 for 4? And what was the talk that was going out, around in the middle at that point in time? To be fair, we didn't really talk much, to be honest. That's the simplest thing. We were just trying to keep it like you said, keep it as simple as possible, and just try to hit the ball in the gaps and run as hard as possible. And when we do get a bad ball, just put it away and try to keep taking over and take it as deep as possible for guys like Dominic, CJ, and Jamie. Oh, Dominic had a great 24 run, striking at 200. 24 runs made all the difference. Has he been practicing quite a bit? Hetty, have you been spending time as well? Because we all know you're the hitting machine, but with Drake's contribution of 24 as well? Yeah, he's been working really hard. We all have actually, because I think it's one of those seasons where there's nothing like last year for us, to be honest, where we were just sailing. This year it's kind of been up and down, so I think it's been really nice that the guys have been working hard off the field, and then it comes out whenever it's needed, really show up today. Right. Well, it took you 5 innings to actually settle into the competition. The last 2 were 40, and then you had a half century today as well, an important contribution. Did you take your time? Are you well settled though? I think so. At the beginning, I think it's really that the planning really. I didn't have that much of a. I don't think that I was getting into it as much. I think I was just out of form for a little bit. I was just trying to just. I really can't. Just trying to feel bat on ball at the beginning, to be honest. But now I think it's like with practice and with everything, I think it's gotten better now. Right. Well, there was yes. Please. Sorry, just asking Hetty. Do we see Hetty bat up the order to come and try and get maybe 40 odd deliveries out of 120? I hope not. Why not? I think we have more than enough people to actually get the job done in front of. Just give me a measly 20 balls and I'm fine. You like to be the Ferrari. Yeah, just keep going. I'm good with that. When we talk about the match today, it was more of a bowler's match. If we talk about the second innings, it was an all-round effort by the bowlers of Gulf Giants. Take me through the fall of wickets and how good was the bowling unit tonight? Words can't explain how good the guys were, to be fair. I think it's just the way we just went about it. Well, they just went about it, really. It just with it being a slow total, I think the guys, they really stood up today. As they did, I think in the beginning when we were kind of down with the bat just a little bit more. I think the guys, they really just stood out and just did their best and tried as much as possible to keep it on the stumps, like I said earlier. And I think it really worked for us. राइट ये यहाँ बोल रहे हैं कि विकेट टू विकेट बॉल करने का प्लान था और बहुत खुश हैं जिस तरीके से बॉलिंग यूनिट ने आज परफॉर्म किया है. इनफैक्ट पूरा क्रेडिट उस बॉलिंग यूनिट को जाता है बिकॉज एक बहुत ही लो टोटल यहाँ पे डिफेंड कर रहे थे. 126 ही बना पाए थे, 127 का टारगेट था और फिर भी इस मैच को 19 रनों से जीत लिया है. यानी आप सोच सकते हैं कि गल्फ जायंट्स ने कितना बढ़िया प्रदर्शन किया है गेंद के साथ कि हर एक गेंदबाज के खेमे में विकेट जरूर आया है.
और इसी के साथ बता दें कि पॉइंट्स टेबल पर गल्फ जायंट्स जो हैं तीसरे पायदान पर ही हैं। एक बार आपको दिखा देते हैं, एक नज़र डाल लेते हैं कि पॉइंट्स टेबल पर किस तरीके से जो टीम्स हैं वो खड़ी हैं। सबसे ऊपर एमआई एमिरेट्स, देखिए नेट रन रेट हम बार बार इसकी चर्चा कर रहे हैं। उसके नीचे अबू धाबी नाइट राइडर्स, तीसरे पायदान पे गल्फ जायंट्स थे, वो तीसरे पायदान पे ही रहेंगे, लेकिन नेट रन रेट में थोड़ा इजाफा और पॉइंट्स, वो जो 2 पॉइंट्स है वो जरूर होगा। और दुबई कैपिटल्स भी हिली नहीं है, वो नंबर 5 पे हैं, लेकिन आज की हार उन्हें बहुत खलेगी। Now we just took a look at the points table there, Sharon. It's getting really interesting as the playoffs get closer. What are your thoughts about it? How competitive is this competition? This year it's been off the charts. I can't believe that it's still so close and only one team has qualified and it's only like 3 games remaining. Like it's been really good. I think the wickets have been really good as well, probably with the exception of a few. But other than that, it's been really good to watch. It's been really lovely to playing as well. Well, this deep in the competition, Shimran, from here on in, which team do you think possibly can threaten you guys the most? None. Whoa! I think it's like I think the games that we lost really it's more on us than the other teams that we played against. I think some teams did play some good cricket as well, but I think we just lacked in some ways, like in probably sometimes with the bat, sometimes with the ball, you know. So it's just for us to put it all together and like we did today in some parts. Once we gel together and get it all and put it all out there and leave it all in the field, I think we'll be a serious team to play with. And Drexy, not getting a ball, playing as a batsman? That's something different for him. And how important was this win? Because the position at where you are at the moment, and the last 2 games are up against the top 2 teams, the My Emirates and Abu Dhabi Night Riders. So this win was something that was you really were looking forward to. Yeah, we really were. It's nice to win cricket games, to be fair, but this one, I think this one really pushed us a little bit closer to probably the top 2, to be fair. And the guys, they really did, like we all saw, the guys, they really did a fantastic job with the ball, and even in the field as well. The captain did his part with the 2 run-outs as well. So it's coming. We're coming together now. Yeah, it's all about peaking at the right time, isn't it? Yeah. That's basically what I'm thinking, and I'm hoping that we continue that. It indeed is, and you also have quite the Windies flavor in your team, so I'm pretty sure you're enjoying that. We can see it on social media, though. It's once we're here, because of the fact that it's like you're away from family as well. It always helps to have some friendly faces as well. Just one last question. I know you play just 2 leagues all over the world. How much are you looking forward to every year for the DP World T20? You really enjoy it? Yeah, I'm really, really enjoying it. I think last year was one of the, I was kind of iffy about it last year because it was the first year. But this year's been, I was really looking forward to it. And I'm here now, so I'm really enjoying it as well. That's it. Well, thank you so much, Imran. I love the confidence. Keep it going. You've got 2 more games before you guys hit the playoffs. All right, so wish you all the best. Cheers. Thanks. Thank you. Thanks a lot for joining us. थैंक यू। वेल विद दैट अब करते हैं थोड़ी डेविड वार्नर की चर्चा, बिकॉज वार्नर का ये आखिरी गेम था डीपी वर्ल्ड T20 में। इसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया लौटेंगे वेस्ट इंडीज सीरीज के लिए, और एक बार फिर आप उनका बैट क्यों ले आई? मैं उनका बैट लाई हूँ आपसे ये पूछने के लिए कि वो इस बैट का इस्तेमाल करके रन्स क्यों नहीं बना पा रहे। देखिए, दुर्भाग्य की बात है कि इतना बड़ा खिलाड़ी है कि वो फॉर्म पूरा सीजन नहीं नजर आया। 8 मुकाबले हो गए और आज भी जिस तरीके से आउट हुए, ओवरटन की वो धीमी गति की गेंद वो हाथ से पढ़ ही नहीं पा रहे। आज भी जिस तरीके से वो शॉट खेला था थ्रू द लाइन, वो बल्ला चल गया था। और ये एक ऐसा खिलाड़ी है जो जाना जाता था कि पावर प्ले में वो कैपिटलाइज करे, बॉलर के हाथ से बॉल निकले, ये अपने आप को इतनी जल्दी पोजीशन में डाल लेते। बट सरप्राइजिंग, लेकिन कई बार उतार चढ़ाव चलता रहता है। थोड़ा सा तकनीक की कमी है, और जब आप तकनीक के बारे में बात करेंगे, ये तो खैर उनके आंकड़े हैं। अगर आप देखें कि किस तरह का उनका प्रदर्शन रहा है, निराश ही किया उन्होंने। एक भी अर्धशतक उनके नाम के सामने आपको नजर नहीं आएगा। स्टार्ट मिलते हैं तो स्टार्ट को बड़े स्कोर में भी तब्दील कर पाए, और स्ट्राइक रेट भी इनका कोई खास रहा नहीं है। और जब हम तकनीक की बात करते हैं ना, तो सब यही बात कर रहे थे कि इनका अगला पाँव नहीं चलता। अगर आप थोड़ा सा तकनीक पे अगर हम नज़र डालें तो उनका अगला पाँव क्यों नहीं चलता, क्योंकि अगर आप देखें, एक तो वो पहले ही थोड़ा सा खुल के खड़े होते हैं। यूँ जब ये खुल के खड़े होते हैं ना, तो इनका जब वेट साला ट्रांसफ़र होता है, पहले इनिशियली वो चला जाता है इधर,
मतलब बॉडी उनकी गिर जाती है उधर को। जब बॉडी आपकी उधर को गिर रही है तो ये पैर आपका सामने कैसे निकलेगा? ये पैर यहाँ निकल ही नहीं सकता, क्योंकि शरीर का सबसे भारी हिस्सा जो होता है आपका सर होता है। तो जिस दिशा में आपका सर जाएगा, आपका अगला पाँव हमेशा उसी दिशा में निकलेगा। आपको याद होगा एक शॉट उन्होंने जब पीछे को रिवर्स करने की कोशिश की थी, वो गिर गए थे नीचे ज़मीन पे। वो इसलिए कि उनका भार जो है वो सारा आगे चला जाता है। वो पिछले पाँव में भार जो है वो आउटसाइड दी ऑफ स्टंप उनका चला जाता है, इसलिए ये पैर जो है ये यहाँ निकल ही नहीं पाता है। ये पैर अगर निकलेगा तो ये इधर निकलेगा। अब यहाँ निकलेगा तो गेंद की जहाँ लाइन है वहाँ पे वो देखेंगे ही नहीं, वो उनका बैक साइड आ जाएगा। तो ये तकनीक में जो है ना दिक्कत आ रही है, इसलिए इनका जो अगला पाँव है वो सामने नहीं निकलता। वो बॉडी उनका हेड जो है वो उधर को गिर रहा है ऑफ स्टंप के बाहर, इसलिए वो पैर वहीं का वहीं रह जाता है। जो भी गेंद आप उनको ऑफ स्टंप के बाहर फुलर डालेंगे ना, वो शॉट खेल लेंगे, लेकिन जहां लाइन लेके आप उनके शरीर के करीब आ गए वहां वो फंस जाएंगे, क्योंकि भार उनका पहले ही ऑफ स्टंप के बाहर गिर गया। जी, और इसीलिए इस तरीके से आउट भी हुए हैं। जो आप तकनीकी प्रॉब्लम्स बता रहे थे, किस तरीके से डिसमिसल्स हुए? बड़ा फर्क रहता है, बिल्कुल। विवेक ने जो बातें कही है वो बहुत गहराई, और ये टेक्निकी इश्यूज आप सॉर्ट आउट करा लेंगे तभी जो है ना आप अच्छी पोजीशंस में आ जाएंगे। और यहाँ तो चलिए आपके पास एक या दो गेंदबाज है जो 140-142 किलोमीटर प्रति घंटे पे डाल रहे हैं, लेकिन लगातार जब आप ऐसी क्रिकेट, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलते हैं जहाँ पे आपका 3 या 4 ऐसे गेंदबाज आपको मिलते हैं 145 वाले, वहाँ पे वो कमियाँ जो है ना वो और बड़ी नजर आती है। जी, ओवरऑल आप इनका सीजन कैसे देखते हैं विवेक? निराश ही हुए होंगे, क्योंकि जब वो यहाँ आए थे तब एक बहुत बड़ा नाम आया था, डेविड वार्नर, जो जुड़ा था इस टूर्नामेंट के साथ, और सबको ये उम्मीद थी कि डेविड वार्नर आए हैं तो वो बल्लेबाज डेविड वार्नर नजर आएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये अपने प्रदर्शन से इतने ज़्यादा खुश होंगे नहीं, क्योंकि जब आप बल्ले के साथ अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपकी कप्तानी को भी इफेक्ट करता है। और इसी वजह से दुबई कैपिटल्स आज देखिए सब कुछ करने के बावजूद ये मैच जीत नहीं पा रही। सिर्फ डेविड वार्नर ही नहीं, क्योंकि अगर गुरबाज की भी बात करें, हम ओपनर्स की बात एक साथ करते हैं। डेविड वार्नर इतना बड़ा नाम है कि हमेशा उनकी चर्चा करते हैं, लेकिन आपके ओपनर्स ही नींव नहीं रख पा रहे हैं, तो बाकी बल्लेबाज क्या करेंगे? बड़े अच्छे आंकड़े हमारे जो स्टैटिस्टिशियन अजीम हैं उन्होंने निकाल के दिए थे कि 8 मैचेस में बतौर जोड़ी 78 रन वो साझेदारी है। अब ये ऐसे आंकड़े अमूमन आप जो सलामी बल्लेबाज होता है या टॉप 3 की पावर प्ले आप कैपिटलाइज करते हैं, वो 36 गेंदें जो है ना फील्ड रिस्ट्रिक्शंस को आप जो है पूरी तरीके से यूटिलाइज करें। आज भी रहमानुल्लाह गुरबाज वो ले में नहीं नजर आ पा रहे थे। ओवरऑल अगर आप देखें तो जितने भी बल्लेबाज हैं उनके शॉट सिलेक्शन के बारे में क्या कहेंगे विवेक? शॉट सिलेक्शन के बारे में क्या कहें, या तो आप कहें विनाश काल विपरीत बुद्धि, या विपरीत बुद्धि विनाश काल। अब आप समझ लीजिए क्या है, क्योंकि शॉट सिलेक्शन जिस तरह की हुई है, और ख़ास तौर पे आप ये भी देखिए ना टोटल आप कितना इस वक्त जो आप चेस कर रहे हैं, टोटल 126 का है, रन आउट आप हुए जा रहे हैं। शॉट सिलेक्शन की अगर आप बात करें तो स्पिनर को आप ठीक से पढ़ नहीं पा रहे, और काफ़ी बल्लेबाज तो सीधी गेंदों पे आउट हो गए। तो मतलब अब क्या कहा जा सकता है, मतलब शब्द ही नहीं रहेंगे आपके लिए समझाने के लिए। तब तक तो वैसे भी मुकाबला खत्म हो गया था। दासन शनाका जब बैटिंग भी कर रहे थे, वो लास्ट विकेट जो हैदर जो रन आउट भी हुए, उस कहते हैं ना क्रिकेटिंग लॉजिक या थोड़ा सा वो कॉमन सेंस वो इस टीम में शायद डगआउट से मैसेज नहीं आ रहा या क्या, वो थोड़ा हैरान हो रहे थे कि एक जो आखिरी उम्मीद या वो जो किरण थी ना, वो भी आपने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली कि आप कौन सा खिलाड़ी मैच जिता सकता है या कौन सा बल्लेबाज है जो आपको मैच जिताएगा। 11 नंबर का बैट्समैन या जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी शनाका है। तो आई एम लिटिल सरप्राइज कि जिस तरीके से ये टीम चल रही है, ऐसा लग रहा है बिगैर दिशा के चल रही है। वो विजन नहीं नजर आ रहा है कि सब 11 खिलाड़ी मैदान में उतर रहे हैं, लेकिन 11 के 11 खिलाड़ी ना अलग दिशाओं में चल रहे हैं। और सफल टीम वही होती है एक विजन के साथ एक दिशा में चलती है। वो दिशा नहीं नजर आ रही। जी, वो जो रन आउट्स दिखाया है वहाँ पर, वो भी रनिंग बिटवीन द विकेट्स भी काफ़ी ऑकवर्ड था। लेकिन कितना भी बड़ा खिलाड़ी क्यों ना हो विवेक, जब आपके ओपनर और एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी फॉर्म में ना हो और अगर वो जा रहे हो, तो क्या एक पॉजिटिव भी है ये इस टीम के लिए? पता नहीं क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है इस टीम के लिए, कुछ समझ नहीं आ रहा है रिद्मा, क्योंकि जिस तरह की टीम है, जिस तरह के खिलाड़ियों के नाम है, उस तरह का प्रदर्शन देखने को मिला नहीं है। तो अब डेविड वार्नर क्योंकि खुद अच्छे फॉर्म में नहीं थे, तो शायद
यही समझें लोग कि भाई थोड़ा सा पॉजिटिव ही है कि कोई और खिलाड़ी आएगा शायद उसके बल्ले पे गेंद आके लगेगी, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था। बहुत दुर्भाग्यवश जो भी चीज़ें यहाँ हुई हैं दुबई कैपिटल्स के नज़रिए से, क्योंकि वार्नर जैसा नाम आए और आके अगर इस तरह का प्रदर्शन रहे तो कहीं ना कहीं दुख तो होता ही है। जी बिल्कुल। लेकिन गल्फ जायंट्स की बात करें तो एक और जीत उन्हें मिली है। पिछली जीत जो थी वो काफ़ी बड़ी थी, जिससे नेट रन रेट में इजाफा हुआ। आज वो 2 पॉइंट्स भी कमाएंगे। लेंगे आज छोटा सा ब्रेक। और शिमरॉन से पूछा था मैंने, यू हैव सम विंडीज फ्लेवर इन द टीम। क्या है विंडीज फ्लेवर और किस तरीके से मजे करते हैं ये ऑफ द फील्ड, आइए आपको दिखाएं। गल्फ जायंट्स ने आज डीपी वर्ल्ड T20 का सबसे लोएस्ट टोटल डिफेंड किया और दुबई कैपिटल्स को उन्हीं के घर में घुस के हराया। 19 रनों से ना सिर्फ इस मुकाबले को जीता, लेकिन वो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी पॉइंट्स टेबल में अपने खाते में जोड़ लिए हैं, और जिसका फायदा उनको जरूर होगा क्योंकि प्लेऑफ का रेस जो है अब और भी मजेदार और तीखा होते जा रहा है। वेल, गल्फ जायंट्स की जीत हुई और देखिए आज ना जीत गेंदबाजों की हुई है, क्योंकि बल्लेबाज इतना टिके नहीं, कुछ ज्यादा रन्स बने नहीं, 126 ही बना पाए वहां पे गल्फ जायंट्स, लेकिन उसे डिफेंड किया। यानी दोनों खेमों से आज गेंदबाजी बहुत अच्छी हुई है, और जब गेंदबाजी इतनी अच्छी हुई है तो वेलकम बैक टू क्रिकेट सफारी। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरभजन सिंह का जुड़ना तो बनता था, साथ ही साथ हैं सबा करीम। गुड इवनिंग जेंटलमैन। शुक्रान। वेल बजी, आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद, आपने बोला था मैं चेजिंग टीम के साथ जाना चाहता हूँ, क्या बोलना चाहेंगे आप इस पर? जैसे चेजिंग टीम के साथ मैं जाना चाहता था, वो मेरे साथ नहीं जाना चाहते थे। वो जैसे आपके साथ जलंधर नहीं जाना जाना ही नहीं चाहते साहब भाई। मैंने कब से बोलता हूँ चलो मेरे साथ जलंधर, चलते ही नहीं है। और खैर निकम्मी क्रिकेट खेले हैं, मुझे लगता है कि ये आसान चेज होना चाहिए था। खराब क्रिकेट, बल्लेबाजी खराब करी वहाँ पे। कोई ऐसा बड़ा टोटल नहीं था, थोड़ा सा ये समझ नहीं पाया मैं कि हुआ क्या है। और ऐसी जब हार होती है ना तो टीम को रिकवर करने में बहुत दिक्कत आती है, और जो ऐसी टीम जीत जाती है ऐसे मैच, वो बॉन्डिंग और ज़्यादा मजबूत कर देती है। जीजी के लिए तो बहुत बड़ा मैच, क्योंकि ये जीते हैं पॉइंट्स और यहाँ से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बट वो जो टीम है ना, वो खेमा बहुत हैरान परेशान रहेगा कि हुआ क्या उनके साथ। और आपस में जब बातचीत करेंगे वो यही कहेंगे यार एक की नहीं, कलेक्टिवली गलती कर रही है। 3 रन आउट और इतने छोटे टोटल में जहां आपको रन बॉल चाहिए, आपने खराब क्रिकेट खेली है, सिंपल इज दैट। 126 डिफेंडेड, यानी गेंदबाजी में ज्यादा दम थी गल्फ जायंट्स के, या बल्लेबाजी बहुत बुरी थी? 3 तो रन आउट हो गए, रनिंग खराब थी। नहीं, वो जो विनिंग मोमेंट दिखाया ना, वो पूरी टीम पूरे मैच की तस्वीर बयान करता है। हाँ। जेमी ओवरटन इतने लंबे कद के वो खिलाड़ी हैं, वापस भाग के आए विकेटों के पास, बॉल को पकड़ा, उसके बाद इतनी शानदार फिटनेस दिखाई उन्होंने और रन आउट कर दिया। इसका मतलब है कि उनके अंदर भूख कितनी ज़्यादा है। और हर एक खिलाड़ी जो गल्फ जायंट्स का, उसने ये दिखाया। एक समय ऐसा था जो बल्लेबाजी कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, वहाँ से उन्होंने निकल कर आए, 26 रन बनाया। जिस तरह से उन्होंने विकेट आज लिया, उसके साथ साथ ये जो फील्डिंग एफर्ट देखने को मिला, फील्डिंग हालांकि दुबई कैपिटल्स ने भी अच्छी की थी, पर जब आप रन चेस कर रहे हैं उस समय आपको थोड़ा बहुत दिशा होनी चाहिए, थोड़ा बहुत पर्पस होना चाहिए। उसकी कमी नजर आई आज दुबई कैपिटल्स के रन चेस में। और इसी वजह से 19 रन बहुत बड़ा होता है T20 के फॉर्मेट में, जहां एक बॉल या फिर एक रन से मैचेस जीता जाता है, फिर एक विकेट से जीता जाता है। और 19 रन बहुत बड़ा मार्जिन है ये जीत का, ये बहुत ज्यादा दुखदायक है दुबई कैपिटल्स के लिए, वो भी जब टोटल सिर्फ 126 का हो। लेकिन अगर कुछ पॉजिटिव्स की बात करें, यहाँ पे फील्डिंग की बात की, लेकिन अब गेंदबाजी की बात करते हैं, क्योंकि दुबई कैपिटल्स की ओर से गेंदबाजी काफी अच्छी हुई। ऑली स्टोन का पहला मैच, वो आए और उन्होंने 4 विकेट चटकाए। आपको सबसे खास बात क्या
लगी उनकी डिलीवरीज की? देखिए लंबे कद के हैं, गति है उनके पास, और सबसे ज्यादा जो अच्छी चीज उनकी जो मुझे लगी ना, उन्होंने T20 के फॉर्मेट की तरह गेंदबाजी नहीं करी, अच्छी लाइन लेंथ पे गेंदबाजी करी है, अपनी पेस से छकाया और जो लाइन लेंथ है उसको छेड़ा नहीं। ऐसा नहीं कि एक आध चौका लगने के बाद उन्होंने कुछ अलग करने गए, वो जो बोल्ड किया वो बहुत कमाल का गेंद था। इतना जबरदस्त बॉल सीधा सीम पे पड़ा और उसके बाद बॉल अंदर की तरफ चला। ये अच्छी खास बात इनकी सबसे ये कि ये विकेट टू विकेट गेंदबाजी करते हैं। नया गेंद तो ये बहुत अच्छा चलाते हैं, बट जब पुराने गेंद के साथ भी आए तो साहब भाई इन्होंने लेंथ अपना चेंज नहीं किया। ये स्वाभाविक जो क्रिकेट जिस लिहाज की होनी चाहिए वैसा है, कि ये नहीं है कि आपने बिना मार पड़े लेंथ चेंज कर दी, यॉर्कर करने चले गए या बम्पर करने चले गए। अच्छे लाइन लेंथ पे गेंदबाजी करी जहां से बल्लेबाज को प्रयास करना पड़ा। वो प्रयास करते हुए हेड मार आउट हुए और वहां से थोड़ी कमर सी टूट गई थी इस टीम की। बट वो 4 विकेटें जो ली है आज वो भी निराश होंगे कि यार मैंने तो अपना काम कर दिया था, पर बल्लेबाजों ने किया क्या। जी, और उनका साथ टेस्ट मैच लेंथ उन्होंने डाली आज बाजी है कि नहीं? टेस्ट मैच लेंथ का फायदा आज हमें देखने को मिला है। टेस्ट मैच खेलने का अनुभव है और वही मुझे लगता है कि यहाँ पर उसी का फायदा मिला। लंबे कद के हैं, डेक को हिट किया, वहां से उनको मदद मिली ऑफ द विकेट। स्पेशली वो जो गेंद, माफ करना क्योंकि मैं बार बार उस पे आता हूँ, वो साहब भाई ऐसी गेंद है कि मतलब बल्लेबाज वहां पे अक्सर गलती कर जाता है, क्योंकि पड़ने के बाद डिविएशन जो है इतना ज्यादा था और सीम पे वो गेंद इस लिहाज से पड़ी है कि सीम बिल्कुल स्ट्रेट थी, बट थोड़ा आधा भाग जो है वो नीचे लगा, आधा भाग सीम पे लगा, जिसके कारण पड़ने के बाद जो गेंद की मूवमेंट थी ना काफी ज्यादा थी। बल्लेबाज को कोई अंदाजा नहीं था। मुझे लगता है इस पूरे कंपटीशन में अभी तक की मैंने वो बेस्ट बॉल देखी है, वो प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट वाली बॉल थी। ब्यूटीफुल। लेकिन इस तरीके की गेंदबाजी हुई, लेकिन बल्लेबाजी में उस तरीके का दम नहीं नजर आया। चले दुबई से हम रैप करके जाएंगे अबू धाबी, वहां पे जाएगा हमारा काफिला और कल के मैच में मुलाकात होगी ADKR और शारजा वॉरियर्स एक दूसरे से भिड़ेंगे अबू धाबी के शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम में। आपको बता दें कि ADKR इज क्लिकिंग एट द राइट मोमेंट। पिछले मैच में आंड्रे रसल ने कप्तानी की थी, सुनील नारायण खेले नहीं थे, लेकिन एक बार फिर वो नजर आएंगे। गेंदबाजी और बल्लेबाजी सारे जो बॉक्सेस हैं उसमें टिक मार्क लगा हुआ ADKR के लिए। कल क्या होगा? शारजा वॉरियर्स को जो है अब फॉर्म में आने की जरूरत है, क्योंकि प्लेऑफ्स तो ये रहे। कौन जीत रहा है? प्रेडिक्शंस ले लेते हैं। मैं नहीं दूंगा जी, जो सब भाई कहेंगे मैं इनके साथ चलूंगा। आपको कहाँ लेके चलना है मुझे बता दीजिए। आप मेरे साथ चलिए। अबू धाबी वही वाली टीम जीतने वाली, उनका होम ग्राउंड है। ठीक है, अबू धाबी नाइट राइडर्स का। चलिए अबू धाबी नाइट राइडर्स, यहाँ पे हमें प्रेडिक्शंस मिल चुके हैं। ऑलराइट, वेल थैंक यू सो मच जेंटलमैन, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग। वेल इट इज अ रैप फ्रॉम द दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। यहाँ पे गल्फ जायंट्स ने अपना दमखम दिखाया। अब कर देखना होगा कि क्या ADKR अपने होम ग्राउंड को कैप्चर करेंगे या नहीं। सी यू, गुड नाइट। एक रश है नस नस में, लगे कुछ नहीं अब बस में, उठने वाला है एक तूफान, जूतों के फीते लगे कसमें। बूम, बेस्ट ऑफ द बेस्ट यू नो, with the best of best you know, lights bright जैसे हो रहा क्रिकेट फेस्टिवल, होने रे हल्ला हल्ला हल्ला।